મારા સપનાનું ગામડું, તો ત્યાં બાળકને વિકસવાની પૂરેપૂરી તક હોવી જોઈએ, જ્યાં બાળક સંકુચિત ના હોય, જ્યાં બાળક કુપોષિત ના હોય, જ્યાં બાળકને શિક્ષણ, આરોગ્ય અને માનવતાના મૂલ્યોની સાથે એનો વિકાસ થાય, એવું મારું ગામડું હોવું જોઈએ, કે જ્યાં લોકો એકબીજાને સહજ પોતાનો દરવાજો ખોલીને એની મદદે આવવા જોઈએ, એમ કે તારા ઘરે ખાવાનું નથી તો લે આ મારી ખીચડી લઈ જાય. ગામડું મારા સપનોનું ગામડું એવું હોવું જોઈએ કે જ્યાં કોઈ ભૂખ્યું સૂઈ ના જાય, અને ત્યાં કોઈ દુઃખી હોય તો દુઃખની અંદર બધા સહભાગી થાય, સુખમાં પણ સહભાગી થાય પણ દુઃખમાં પણ સહભાગી થાય. મારા સપનાનું ગામડું છેલ્લે તો એવું જ હોવું જોઈએ જ્યાં બાળકને પૂરેપૂરો ખીલી શકે, ખોલી શકે એવું ત્યાંનું વાતાવરણ હોવું જોઈએ. પણ ઉપનામ આશીષથી હું ઓળખાઉં છું. ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી 1 વર્ષ નોકરી કરી અને એમાં બહુ જ ડિપ્રેશન, હતાશાઓમાં આવી ગયો એમ. પછી 10 દિવસની વિપશ્યના કર્યા પછી એવું લાગ્યું કે જીવનમાં ઘણું બધું છે, જે તમારામાં કંઈક છે જેને શોધવું જોઈએ એમ. તો એના માટે 1 વર્ષ અનાથ આશ્રમમાં રહ્યો. ત્યાં ધ્રુવ ભટ્ટ સાથે મુલાકાત થતાં હું વાર્તાઓ લખતા શીખ્યો. પછી દાહોદના જંગલોમાં બાળકોને વાર્તાઓ કહેવા જતો ને આવતો માંડવ ગામમાં. ત્યાં મુસ્તુખાન સાથેની મુલાકાત પછી જયેશભાઈ સાથેની મુલાકાત થઈ અને હું સુગઢમાં ઈએસઆઈમાં રહેવા આવ્યો. સુગઢમાં ઈએસઆઈમાં રહેવા આવ્યા પછી ત્યાં એક વાક્ય લખેલું હતું કે કામમાં ભાવ નહીં હોય ને તો એ કામ કંઈ કામનું નથી એમ. અને મને એવું લાગ્યું કે મારા કામની અંદર ક્યાંક એ અછત છે. પછી મેં મારા કામમાં ભાવ લાવ્યો. વૃક્ષોના પાણી પીવડાયા, સમગ્રતા એકાગ્રતાની કુટીરને રસ્તાઓ, રોડ પર કચરો વાળ્યો, સમગ્રતા એકાગ્રતાની કુટીર આખી સાફ કરી. અને એમ કરતાં હું આંગણવાડીની બહેનોની સાથે અહીંયા જે ટ્રેનિંગ થાય એની સાથે હું જોડાયો. અને એમાં વાર્તાઓ થકી બાળ વિકાસ ઉપર મેં બોલવાનું ચાલુ કર્યું, વાત કહેવાનું ચાલુ કર્યું. જોતજોતામાં મને ખબર પડી કે મારી અંદર એ બાળકો માટેનું બાળ જગત છે જેને મારે બહાર કાઢવું જોઈએ. પછી એવું નક્કી કર્યું કે ગામડામાં જઈને ગામડા સાથે સંવાદ કરીશું બાળકો સાથેનું, તો જ આ જગત વિકસશે એમ. બાકી જો પોતાની જાતને નહીં ખોલું તો એ ગૂંગળાઈ જશે એમ. એટલે પછી કચ્છના નિયર ગુજરાત અને પાકિસ્તાન, ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડરનું ગામડું છે, જ્યાં ગાંધીનું ગામ કરીને લુડિયા, એ ગામની અંદર રહીને બાળકો સાથે કામ કરવાનું નક્કી કર્યું. મેં તો બહુ ઘુમાવું, कहाँ पर 1 साल से ज़्यादा मैं टिका ही नहीं हूँ. वो काका साहब कालेकर का है ना, चराती चरतो भगा, जो जितना घूमा वो उतना सीखा. तो वो चीज़ दिमाग में घुस गई कि अगर लोगों को जानना है, प्रकृति को समझना है, तो किसी एक जगह पे स्थायी नहीं रहना है. कहते हैं कि गड्ढे का पानी कैसा होता है और झरने का पानी कैसा होता है. तो मैं बस वही चीज़ 8-9 महीने, 10 महीने, 1 साल सब देखा, सब जाना, सब घूमा. तब पता चला कि तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ है. तो वो बच्चों के लिए ही है. मैं बड़े लोगों के साथ काम करने में मैं सेट ही नहीं होता हूँ. पता नहीं प्रकृति अब ऐसी हो गई है या फिर प्रकृति खिल गई है मुझ में कि मैं बच्चों के साथ ही हूँ. तो बच्चों के साथ कहानियाँ कहनी, उनके साथ खेलना. छोटे बच्चे, मैंने अभी 1 साल से तो ऐसा हुआ है कि
छोटा बच्चा किसी का भी हो, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा मुझसे करता है। पहचानता नहीं है मुझे, उसने कभी देखा नहीं होगा, पर जब वो आई टू आई कांटेक्ट करता है तो हम दोनों में बात हो जाती है। ऐसी वो अब मैं वो भाव वो समझने लगा हूँ। तो ये 6 साल हुए और ये एकदम नहीं निकला है। 6 साल में मैं कई बार यानी बार बार ऐसा हुआ है कि बटुए में पैसा नहीं था और 5-10 किलोमीटर चला हूँ। झुपड़पट्टियों में कहानियाँ कहने के लिए दोपहर में खाना घर पर खाता ही नहीं था और चलकर जाता था, क्योंकि पापा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद तो बहुत सारा देखा था कि जेईबी में अफसर बनेगा, क्योंकि वो जेईबी में है। पर मुझे जयेश भाई से मिला, तुला संजय कर है उनसे मिला, फिर अपने खिमानी साहब से मिला, फिर प्रवीण भाई दुलेरा कर एक है उनसे मिला, पार्थिस भाई से मिला, ध्रुव भट्ट से मिला। तो उन सब से मिलने के बाद कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने काम के साथ अपने अंदर क्या है वो बाहर निकाल रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको पता ही चल गया कि मेरे अंदर ये है और मुझे इसको कैसे भी कर बाहर निकालना है, उस कैसे भी कर मुझे खुद खिलना है। फिर मुझे पता चला कि मुझे भी ऐसा ही करना है, या फिर नेचुरली ऐसा हुआ कि नहीं अंदर है तो चलो उसे बाहर निकालो कहानियों के द्वारा। तो बहुत सारी स्कूलों में कहानियाँ कही, फिर लिखनी, मेडिटेशन ध्यान में बैठते थे तो कहानियाँ बनती थी। यहाँ पर ये तालाब के झील के किनारे पड़ा रहता था तो यहाँ पर कहानियाँ बनती थी, तो वो सारी लिखता था, वहाँ पर बैठकर लिखता था। तो 4-4.5 साल पहले मैंने कहानियाँ लिखनी स्टार्ट की, पर वो कभी पब्लिश नहीं की, कि लोगों को बताया नहीं कि वो हुए। लेकिन 1 साल पहले से जब मेरा लड़का है 3 साल का हो गया है, तो उसके साथ रोज़ कहानियाँ उसको कहनी पड़ती थी। रात को आधी रात को भी अगर पीपी करने के लिए भी उठता है तो अगर उसको वापस सोना है तो भी वो कहानियाँ सुनते ही सोता है। आज भी वो 5.5 साल का हुआ है, लेकिन आज भी कल रात को भी वो रात को मुझे बोल रहा है कि चलो मुझे कहानी कहो। तो कहानी स्टार्ट होती है, एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें शेर रहता था और वो सो जाता है, ये 2। लेकिन उसका फल मुझे ये मिला है कि आज वो 1-1 1.5 मिनट की कहानियाँ अपने आप ही बनाता है, और वो बहुत सारे जो शब्द रहते हैं उसका वो पर्याय भी समझता है, उसका उच्चारण सही है, आज उसका उच्चारण सही है। और बहुत सारी कहानियाँ, पंचतंत्र की तो सारी कहानियाँ उसको मोड़े है कि वो उसको पता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। लेकिन उसका डेवलप अच्छा हुआ है, और खुद मेरा भी डेवलप हुआ है। आज मैंने उसको लेकर भी एक कहानी बनाई है, कश्यप और महाकाय वानरव, जो अभी मैं लिख रहा हूँ, वो 4,500 से भी ज़्यादा लोगों ने पढ़ी है सोशल मीडिया में। और अपने अभा भाई है, तो अभा भाई की लड़की है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो पहले वो उनके पास से मोबाइल लेती थी ना, तो यूट्यूब और वो सब कुछ देखती थी, पर अब जब भी वो मोबाइल लेती है तो मेरी कहानियों के अलावा कुछ नहीं पढ़ती है। बस उसने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन रिसेंटली उनसे बात हुई तो वो ऐसा बोल रहे थे कि आशीष भाई, मेरी लड़की आपको पूरा का पूरा पहचानती है। मैं बोला कैसे? कि आपकी मेरा मोबाइल वो लेती है और वो आपकी कश्यप और महाकाय वानरा की सारी कहानियाँ उसने पढ़ी है, और वो आपका चित्र उसके दिमाग में बैठा है कि ये एक बहुत बड़े लेखक है। लेकिन मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए लिख रहा हूँ। गांधी 150 में अभी बहुत सारे लोग 150 प्रवृत्तियाँ वो कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं। तो मैंने भी गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई 150 कहानियाँ लोगों के साथ शेयर करने का मैंने तय किया है। तो मैं उनकी छोटी छोटी कहानियों से लोगों को क्या प्रेरणा मिले, वो बात यूट्यूब पर मैं वो कहानियाँ शेयर कर रहा हूँ। हूने पोपटलाल चालता चालता वन वगડામાં ઘૂસ્યા ટીણીક ટીણીક ટીક 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 ટીણીક ટીણીક ટીણીક
ટીટ 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 ટીણીક. હું ને સુફી બેન, હું ને રેવા બેન, ચાલતા 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 વન વગડામાં ઘૂસ્યા. ટીણીક ટીણીક ટીટ 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 ટીણીક, ટીણીક ટીણીક ટીટ 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 ટીણીક. સસલું જોયું, સાપ જોયો, જોયા અમે કાળા કાગડા. ટીણીક ટીણીક ટીટ 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 ટીણીક, ટીણીક ટીણીક ટીટ 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 ટીણીક.